صاحب ایک گھونٹ اور پین چلیں, آپ کا تبرک ہے, آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, میں نے اصل میں بوٹل اٹھا لی تھی مفتی صاحب کی ٹیبل سے, تو مفتی صاحب نے کہا یہ واپس یہیں رکھ دیں آپ کیونکہ انہوں نے پہلے منگوائی تھی. خوش آمدید, خیر مقدم ہے آپ کا. اور ہمارے آپ کے ہر دل عزیز ماشاءاللہ علماء جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو پچھلے سیگمنٹس میں مہمان تھے, ان سے ماشاءاللہ آپ کا تعارف بھی ہوا, بات چیت بھی جاری ہے, اور کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی انداز سے بیچ میں بات کر سکتا ہے. اس میں کوئی ٹن والی بات نہیں ہے, کوئی جس کو جب دل کرے وہ شامل ہو سکتا ہے. گیٹ ٹوگیدر ہے, ڈرائنگ روم میں بیٹھیں. ماشاءاللہ افطار نشریات میں پورا مہینہ الحمدللہ آپ جن سے فیضیاب ہوتے رہے, ان میں سب سے ماشاءاللہ 11 برس پورے کنسسٹنسی کے ساتھ مجھے بھی بہت کچھ سکھایا, اور آپ سب کو بھی بہت کچھ سکھایا. بہت سارے مسائل ہیں ایسے ایسے کمپلیکیٹڈ سوالات میں کبھی کبھی پوچھ کے جو ہے نا کوشش کرتا ہوں موڈ خراب ہو جائے, لیکن ان کا موڈ خراب نہیں ہوتا. یہ اتنے تبسم کے ساتھ جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ سامنے والا جو ہے وہ یا تو حضرت سے بیعت ہو جائے, یا پھر کم از کم جو ہے نا اس میں حصول علم کا جو ایک جذبہ ہے وہ بیدار ہو جائے. اتنی محبت سے ہمیشہ آپ نے لوگوں کو ڈیل کیا. میں اکراس دا بورڈ بہت سارے ممالک میں ہم ساتھ رہے ہیں, بہت سارے, تو وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, مگر آپ جس انداز سے جواب دیتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس بزم کے بعد جس بزم میں صحبا ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو, رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی صاحب بہت بہت مبارک ہو. ایک تو عید کی اوپر سے ماشاءاللہ 33 سال مصلی تراویح, سبحان اللہ سبحان اللہ, 33 سال مصلی تراویح کو. میں نے ایک دفعہ حضرت سے کہا میرے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی 78 برس عمر تھی, 65 مصلی سنائے. اللہ رمضان میں ساری دنیا کی اتنے مصروف ترین عالم دنیا کے, حضرت بھی نو ڈاؤٹ جتنے بزی اسکیجول میں ہوتے ہیں آپ ہم سب جانتے ہیں, 365 دن یہ مصروف ہے, ٹائم ہے ہی نہیں. میں سوچتا ہوں گھر والے بھی یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. بلیو می اور ناٹ, کیونکہ دارالفتاح ہے, ذمہ داری ہے, مسجد ہے, مصلی ہے, گلوبلی لوگ انہیں بلاتے ہیں آگے پیچھے. بہت ایک دن کے لیے, ایک مرتبہ پچھلے دنوں ایک دن کے لیے جا رہے تھے امریکہ, تو میں نے فون کیا, اور ایک بہت ہمارے بڑے میوچل فرینڈ ہے, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, انہوں نے بھی فون کیا. اور کہا حضرت ایک دن کے لیے امریکہ چاہتا کون ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا میں جا رہا ہوں نا, ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا. تو ماشاءاللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. 33 مصلی اور 11-12 حج اللہ نے نصیب کیے اس عمر میں, اور 13 برس کی عمر سے یہ بھی مصلی پر کھڑے ہیں. اور ہمارے مینٹور ہمارے پیر و مرشد بھی 13 برس کی عمر سے کھڑے ہوتے. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے آئیڈیل علامہ عبد المصطفیٰ, علامہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب اور علامہ شاہ احمد نورانی ہیں میری آئیڈیل پرسنالٹیز, اور انہی کو حضرت نے فالو کیا, ہم نے ان کو فالو کیا. تو ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ 2-3 واسطوں سے اللہ نے ایسا ساتھی, ایسا رفیق, ایسا بھائی اور ایسا عالم نصیب کیا. ہم سب ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہی ہم سے پیار کرتے ہیں. سر آپ کی طرف سے بھی ذرا عید مبارک تو چلی جائے نا چاہنے والوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میری طرف سے سلمان بھائی آپ کو بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی, حضور والا سب کو, قاری محسن صاحب آپ کو بھی, اور علامہ حافظ احمد صاحب, حضرت کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صاحب, جی مفتی ابو بکر صاحب, اور مولانا عمران بشیر صاحب ماشاءاللہ اس مرتبہ یہ بھی چھائے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور علامہ حافظ احمد صاحب تو ماشاءاللہ ایک عرصے سے تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ابو بکر صاحب بھی ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں. تو سب کو خوش آمدید, اور تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو. سر آپ کو بھی بہت مبارک. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ سلمان بھائی, ان کو میں منع بھی کرتا ہوں کہ مت کہا کریں اتنے مصلی, بس دل چاہتا ہے کہ موٹیویشن زندگی بھر یہ رہے. آمین آمین. اچھا کبھی کبھار نا, چونکہ ہمارا بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, چھوٹا بھائی ہے, تو کبھی غصہ آتا ہے, تو کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں میں ان کا, کیونکہ سید زادے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ سید ہو, ہمارے آقا ہو, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, اب سیدوں کی پوری فوج بلانی پڑے گی آپ کے لیے. کہتے ایک دفعہ ٹرک بھر کے سید لاؤں گا آپ کے لیے, میں ان سے آپ کو پٹواؤں گا, میں تو کچھ کر نہیں سکتا. اللہ اکبر. اچھا حضرت کے برابر میں تشریف فرمائے, گفتگو جاری رہے گی حضرات سے ماشاءاللہ. سلمان بھائی مبارک. جی علامہ بشیر صاحب جب بات کریں گے نا, عمران بشیر صاحب سے, تو ان کے انداز میں ذرا نہیں, ان کا انداز مجھے وہ ظاہر ہے, ان کا انداز میں کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں. آپ نے جو ہمیں سنایا وہ ذرا اس انداز میں, وہ تو بڑا پرانا, وہ تو بڑی ان کی نیاز بندی ہے, وہ بریک میں سناتا ہوں آپ کو. مولانا عمران بشیر صاحب ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے تھوڑا وقت آپ ان کے ساتھ بتائیں نا, تو آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی. یہ اتنے محبت بھرے, سراپا
माशाल्लाह अखलाक के पैकर हैं। अच्छा, माहौल अल्लाह ने ऐसा बना के रखा रमज़ान का। हज़रत जी तशरीफ़ फरमा, डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा, मौलाना इमरान बशीर साहब, और हमारे आपस में तबस्सुम के तबादले रहे। हमें महसूस ही नहीं हुआ हम रोज़े से हैं। इतनी सहूलत से हमारे रोज़े गुजरते थे, और तावक़्त इफ्तार माशाल्लाह चेहरों पे तबस्सुम रहा। बहुत ठहराव, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत पुख्ता अंदाज़ बयान, बहुत खूबसूरत कलाम करते हैं। सोसाइटी में उतर कर, मुआशरे को सामने रख कर बहुत अच्छी तरबियत फरमाते हैं, बहुत अच्छी तालीम फरमाते हैं। मौलाना इमरान बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज मैं आपको लामा साहब कहूँ, भाईजान कहूँ, क्या कहूँ बताएं आप? अब भाई कह ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो तालिब इल्म हैं। असातिज़ा किराम तो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जिनसे आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, और माशाल्लाह पूरी दुनिया सीख रही है। हमें ऐसे असातिज़ा की, बड़ों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम उस्ताद जी बैठे हैं साहब है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, और डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, उस्ताजुल असातिज़ा जी। बेशक डॉक्टर साहब, इस मरतबा जो प्रोग्राम हुए ना, ओहो, एक तो मैं ARYQ TV को मुबारकबाद पेश करूँगा, ख़ास तौर पर इफ्तार टाइम में जो कससुल कुरान शुरू किया। माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक मारिकतुल आरा प्रोग्राम रहा। बेशक बहुत ज़बरदस्त पेयर। आप लोग के साथ मेरी केमिस्ट्री बड़ी मैच हुई। ज़ाहिर है कि हाजी अब्दुल रऊफ साहब भी काबिल मुबारकबाद हैं, और इसके अलावा HOD साहब हैं, फिर हमारे आमिर फयाजी भाई, और इसके साथ मुफ्ती आमिर साहब। मुफ्ती आमिर साहब ने जो मेहनत की, मैं आपको सही बताऊं, मैं रमज़ान से 2 महीने पहले से देख रहा था, बीमार भी थे, बहुत मेहनत लेकिन कंटेंट पर बड़ी मेहनत की इन्होंने। अच्छा, रात जाग के जी, हमारे बिलाल भाई भी बैठे हुए हैं। ये सब मुबारकबाद के मुस्तकी पूरी टीम जो इस वक्त स्क्रीन के सामने नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं। एक एक बंदा थका हुआ था, लेकिन काम अपना नहीं छोड़ रहा था। अपनी अपनी जिम्मेदारी। सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि सब ने कलाम किया, लेकिन डॉक्टर साहब पकड़ में नहीं आए। डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टर साहब ने कलाम किया, हमारी पहुंच नहीं है उस तक। हजरत आप यकीन करें, बिल्कुल गोलकीपर के डॉक्टर साहब, मैं पास सही कह रहा हूँ। वो वाली बात है कि हॉकी का मैच चल रहा है, हम और आप सब हॉकी खेल रहे हैं, ये गोलकीपर के पास आते थे बड़े सलीके से, आप जरा इधर हटिएगा, हटें गोल। मतलब कोई है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, मतलब गेंद ही नहीं आने दी। और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू। खैर, जब सर बोलते हैं, सर बड़ा पैशन इन्वॉल्व होके बात करते हैं, हम उतर जाते हैं लफ्ज़ों में, बड़ी बात होती है। और मौलाना ने तो हमारे साथ माशाल्लाह ना, कभी खीर कभी शीर, आय हाय हाय, क्या अच्छी आपके साथ गैदरिंग है। मुझे एक सवाल पूछना है। जी जी हजरत। सवाल मुफ्ती साहब के तवज्जुह से मुझे वो राज बतलाइए जी, जिस राज के तहत आप दोनों हजरात ने, मुफ्ती इमरान साहब ने भी और आपने भी, यानी कोई फ़र्क ही नहीं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, कपड़ा एक है, तो वो कौन स्पॉन्सर है जिसने आप दोनों पे करम फरमाया है? कलर भी एक है। वही तो मैं कोई किसी लिहाज से भी कोई फ़र्क नहीं। आंसर हम दोनों के दरमियान में बैठे हुए हैं। हाँ ये बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग हजरत ये देख ले, हजरत फसा रहे हैं। गुल बांटे हैं औरों को, बल्कि समर भी उमर भी है, खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। अर्ज करूँ, आज से 3 बरस पहले इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया में आपकी नशरियात देखता हूँ और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रेटिंग। तो उन्होंने कहा कि हम सब देखते हैं, पूरी फैमिली देखती है, बेटा एक नसीहत करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मैंने कहा बताइए। कह रहे हैं जब आप कपड़े पहनते हैं, लिखा हुआ आता है वार्डरोब बाय फलाना स्पॉन्सर, जो भी ब्रांड का नाम आता है, अगर, क्योंकि मुझे एक रिवायत याद है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा लिया, पहन लिया, ये अल्लाह को देखो। क्या बात। तो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेटा आप बहुत बड़ी बात है। अपने कपड़े कभी पहने किसी साल, और फिर महसूस करें कि तत्माइन्नुल कुलूब वाली बात उन्होंने कही। इत्मीनान क़ल्ब देखिएगा। सलमान भाई, मैंने जी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहले कहने वाला कौन था? वो बिल्कुल आप थे। और 2022 में फिर मैं राज खुलना नहीं चाह रहा था ना, खैर बुजुर्ग भी शामिल हो गए उसमें। 2022 में मैंने अपने कपड़े, आज भी 3-4 साल हो गए, ये मेरे दोस्त हजरात जान देंगे, स्पॉन्सर रोज़ाना मुझे, मेरे 2-3 ब्रांड्स हैं, बड़े मुल्क के नाम हैं, नाम नहीं लूँगा, वो रोज़ाना मुझे कहते हैं आखिरी 10 दिन के पहन लें, 5 दिन के पहन लें, अच्छा आप रख लीजिएगा, अच्छा हम कस्टम बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनता। मैंने अब उसूल बना लिया कि ये वो एक रिवायत वाली बात है, एक हजरत वाली बात है, फिर बुजुर्ग शामिल हो गए, तो बस मैं अब अपने कपड़े पहनता हूँ हजरत। अब मैं अपना सब ने रद्द कर दिया, तो फिर मैंने। सलमान भाई, ये अच्छा हो गया कि एक ही दिन आप लोगों ने सेम पहन लिया, वरना कोई कह सकता था कि आपने इनका सूट पहना हुआ है। ये भी हो सकता था। अच्छा शेर सुनिएगा, सब ने रद्द कर दिया तो फिर मैंने, सब ने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देर लगी,
लेकिन हजरात मेंटोर हैं। अच्छा, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग आजा सुराग ज़िंदगी। अब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब और अल्लामा अहमद रज़ा साहब से, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ आप जो है कलिमात खैर शामिल करें, कुछ ईद की बात शेयर करें, कोई ऐसी लतीफ़ शरारत शेयर करें, कोई ऐसी बात जिससे चेहरों पे तबस्सुम आए और तबस्सुम कायम रहे ना, मतलब संजीदगी में ना जाएं हम। ठीक है। कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब हजरात को ईद मुबारक। पहले तो मैं आप दोनों हजरात को ये बताना चाहूँगा, ये हमारी तरफ आ ही नहीं रहते कि तो आप आगे बैठे हैं तो ये ना हमारी तरफ मुतवज्जो हैं, वरना ये मुझे क्रॉस करके आपकी तरफ चले गए। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मैंने क्या किया है, क्या मैंने आपकी तरह के कपड़े पहने हैं? आपने अभी कुछ नहीं किया, आप करेंगे अगले सेगमेंट में। जी तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया ईद के इस मुसर्रत मौके पर। मुझे लगता है रमज़ान में तो आपको कहा जाता है ना कि पूछना ही पूछना है, तो आप पूछ लेते हैं। अब ईद पे आपको इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप आ ही नहीं रहे हमारी तरफ, लेकिन खैर आप आए, ठीक है, आपने नजर इनायत की। तो ईद की जहाँ तक बात है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरती रही है ईद। और पहले की अगर हम बात करें बचपन की, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ईदें हुआ करती थी। कार्ड्स बनाए जाते थे और ना अशार, आपको पता है वो अशार डब्बा डब्बे में केक, डब्बा सलमान भाई लाखों में एक। लाखों में अरे एक। वाह भाई। और वो नहीं पढ़ दीजिएगा, ईद आई है ज़माने में। नहीं, अब लाखों से करोड़ों की तरफ आना पड़ेगा, लाखों में नहीं करोड़ों में एक। नहीं नहीं सरकार, ये आपकी बंदा नवाजी देखे इनायत जी। माशाल्लाह। तो उस तरह ईद गुजरा करती थी। फिर एक जो ईद का जो आप समझे कि एक ना ऑब्लिगेटरी एक्ट था ईद का, जो लाजमी हमने करना ही होता था, वो था कि हम गन्स लेते थे और छड़े वाली, और मार मार के वो होता था। फिर उसमें पटाखे भी आ गए थे बीच में, तो वो बड़ी ख़तरनाक हो गई थी। लेकिन अब एक बात बताऊं, वो 2-5 रुपए वाली बरकत अब नहीं ला सकते हम। हाँ बिल्कुल। अब हम लाखों रुपए ईद ही बांट देते हैं सिर्फ महज, और उन लाखों में वसूल करने वालों के लिए कोई खैर नहीं। 2 रुपए का नोट याद, आपने 2 रुपए की बात करी सलमान भाई, खर्च नहीं होता था। क्या मुझे याद आया अभी, अल्लाह अकबर। मुझसे साहब पूछ तो लें कहाँ बांटते हैं ईद? नहीं, वो आप जैसे मुखय्यर हजरात को नहीं बांटी जाती, उनसे ली जाती है। ईद ये ज़कात थोड़ी है, ईद ही है। ईद ही है भाई। नहीं आप जैसे रईसज़ादे कहाँ आ रहे हैं सफ में? नहीं तो आ सकते हैं ना, ज़कात थोड़ी है कि नहीं आ सकते। हजरत महमूद देता है, अयाज लेता है। अयाज खड़ा है, आप दीजिए, मैं आप दीजिए, हम लेंगे। हम लेंगे। देखिए क्या याद आया जी। कि आपने बात की कि वो 2-5 रुपए की जो इज्जत थी, बरकत थी, वो नहीं आ सक रही। तो आजकल के दौर में वालिदैन, मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो लाखों रुपए की ईद हाथ में रख देते हैं। वो खुशी तो है, उसका एहतराम तो है, लेकिन हमारे बचपन में हमें लेके जाया जाता खानकाह ताजिया। सही। मेवा शाह कब्रिस्तान में खानकाह ताजिया है, जो हज़रत ताजुद्दीन बाबा से कायम है, मंसूब है। मंसूब है। ठीक है। तो हमारे जो पप्पा हैं उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब, वो सारे बच्चों को वहाँ जमा कर देते उस ख़ास दिन पे, और वहाँ पर एक मखसूस कलाम पढ़ा जाता था, ईद गाहे माँ गरीबा कुए तो बच्चों को वो पढ़ाया जाता था, वहाँ पर तरबियत होती थी, वहाँ पर तरबियत होती थी, पढ़ाया जाता था, और आखिर में आके बच्चों को 5-5 रुपए ईदी दी जाती थी। हाय हाय हाय। ये होती 5 रुपए। बहुत वैल्यू थी कि वो खत्म नहीं होते थे। खत्म नहीं होते थे वो। मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़े आलिम है पाकिस्तान के, वो मदीना शरीफ का सफ़र करे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपने वो शेर पढ़ा था ईदगाह माँ गरीबा, तो मुझे वो पूरा लिख कर भेज दीजिए। उन्होंने फिर वो ट्रैवल का वो अपडेट डाली और ऊपर लिख दिया ईदगाह माँ गरीबा कुए ईद के दिन हुजूर की बारगाह। वाह वाह वाह। हम भी साथ है ईद दीदन रूए। हुए तो जी मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अगर हम अपने बचपने में जाते हैं तो एक रौनक ईद की ये भी होती थी कि रात में जब सारे रिश्तेदारों के पास से होकर जब हम आते थे तो सारे भाई बहन बैठ कर ना गिनते थे बिल्कुल, कितनी ईदी जमा हुई, किसकी ज़्यादा जमा हुई, और उसमें आपस में एक कंपटीशन होता था और फिर बैठ के कैलकुलेट कर रहे होते थे कि अच्छा फलां ने तुम्हें ज़्यादा दी, मैं 15 मुझे नहीं दी, मुझे 10 दी। हमारी जो है वो हम 2 भाइयों की एक छोटी बहन थी, तो हमेशा मामला ये होता था कि उसकी ईदी सबसे ज़्यादा होती थी हमारे मुकाबले में, और वो इस पर सबसे ज़्यादा खुश भी होती थी। और आखिर में जब हमारी ईदियाँ जमा हो जाती थी तो वो कहती थी अब तुम लोग अपनी ईदी में से मेरा हिस्सा निकालो। अल्लाह। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता था। तो अब बड़े हो गए, सब अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, तो वो भी एक रौनक है ईद की जो अब जो है वो इतनी मुयस्सर नहीं आती ईद पे। छोटों की नाज बरदारियाँ। हाँ बिल्कुल। और छोटे इस मामले में बड़े जो है ना लक्की होते थे। क्या ख्याल है अल्लामा साहब? मैं तो अभी भी लेने वालों की सफ में ही हूँ, अगर आप देना चाहें। अब मैं हाजिर हूँ आपके लिए। 1 मिनट ज़रा, मैं कैश नहीं है, ऑनलाइन ले लें। अच्छा मैं भेजता हूँ आपको, भेजता आप मुझे नंबर अकाउंट नंबर सेंड ऐलान करें। कर दें। जी हजरत, बिल्कुल ऐलान हो गया। ईदी में आपको दूंगा। अब कितनी, क्योंकि अब मैं अगर ज़्यादा दूंगा तो वो फिर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा।
नहीं अब तो नहीं आ रही ना ऑन रिकॉर्ड। अरे आपके पास आप ऑनलाइन भेज रहे हैं ना, भाई एक्टिव है। नहीं ये वाला रिकॉर्ड पे आना खतरनाक है, वो वाला चल जाएगा। डन हो गया, आप मुझे अकाउंट नंबर भेजें, मैं ईदी आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। सर आपका शुक्रिया, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब का शुक्रिया, मेरे भाई गुलाम मुस्तफ़ा का शुक्रिया, मोहम्मद शाह का शुक्रिया। इनके साथ मेरे बैरून मुल्क कई दौरे हैं और हमने माशाल्लाह कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में वो शहर जो लोग ट्रैवल आमतौर से नहीं करते, हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए माशाल्लाह, और फुली क्राउडेड सोल्ड आउट इवेंट्स, हज़ारों लोग वहाँ होते थे और अल्लाह ने वहाँ इनको माशाल्लाह ऐसी इज़्ज़त और ऐसी पजीराई। यकीन करें वो शहर हैं कि जहाँ तसव्वुर नहीं होता कि पाकिस्तान के किसी शख्स को लोग जानते होंगे। सफ़र में एक बंदे का भी नाम का तस्करा कर दिया, हमारा इस्माइल। इस्माइल भिमानी, इस्माइल भिमानी जी, वो आपका अक्सर तस्करा करता है, वो बहुत हमारा बहुत ज़्यादा आपका तस्करा करता है, और बहुत अच्छा लड़का, बहुत तमीज़दार, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। बहुत कम। ये बात भी बड़ा नायाब अल्लाह ने हमें हीरा अता फरमाया है। सलमान भाई की तरफ से मिले थे, मगर उसके बाद इतनी क्लोजनेस हो गई हमारे, ऐसा लगता है कि हमारा कोई बहुत पुराना ताल्लुक है। अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आमीन। मुफ्ती साहब ये बहुत क्रिएटिव वालिद साहब की औलाद है, अबू मोहम्मद साहब, फरीद अयाज साहब के औलाद है मोहम्मद ये। साहब के जी, और इनका खुद ये बड़े क्रिएटिव है। मैं वहाँ बैठा, मैंने कहा यार मेरा तहतुल लफ्ज़ का सेशन होना है, तो उसको कैसे करेंगे? मुस्तफ़ा ने खड़े खड़े कंपोज किया उसको और मुझे बताया ऑन द स्पॉट, जिस मतलब वो कहते हैं ना थाप के साथ और जिस चाल के साथ इन्होंने वो हमद के अशार पढ़वाए, आसान नहीं। ये पीछे भी आप लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इनकी मोहब्बत है, इससे खास मोहब्बत है। अभी तो ऑन एयर वो मैं दिखा नहीं पा रहा, हमारी जो ऑफ एयर जो बातें होती हैं वो तो खैर कुछ और ही होती हैं। इनसे ना मोहब्बत मेरी है उस दर्जा, लेकिन इनके बड़ों से जो मेरी मोहब्बत है और उनकी जो मोहम्मद मुझसे साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे आदमी हैं। वो बहुत ज़्यादा है हमेशा। अच्छा, QTV आप लोग इस ज़ाहिर है एक जनरेशन गैप नहीं होने देते, क्योंकि एक खानवादा है आप, आपको अल्लाह ने विरासत कव्वाली किया था। हज़रत अमीर खुसरो ने जो कव्वाल बनाए थे ना बच्चे, ये उनकी औलाद है, नस्ल दर नस्ल। तो एक खानवादा है बड़ा ख़ास, इस हवाले फ़न जानते हैं, इसकी आदाब तहजीब जानते हैं, बावजू होकर बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी है पूरा घर। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुस्तफ़ा के मोहम्मद शाह, आप लोग QTV पर अब आए। एक दौर था कि अबू मोहम्मद और फरीद अयाज, और आप शबी हैं अपने ताया की और आप अपने वालिद की। ऐसा लग रहा है ये अबू मोहम्मद बैठे हैं या फरीद अयाज बैठे हैं जवान। आपने देखा मैंने कानों को हाथ लगाया है, ये आपकी जरा नवाजी है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, हू बहू वही है। हम उनके साये के भी करीब नहीं है। नहीं, अल्लाह कर देगा, अल्लाह मुजस्सम वही बनाए। अच्छा, तो कैसा महसूस किया ARY QTV ने, इस प्लेटफॉर्म ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए? वैसे आपके खानवादे को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, हमने कोशिश किया कि ये वाला जो टैलेंट है, ये वाली जनरेशन, इसे प्रॉपर एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया जाए, शुक्रिया आपका, इंट्रोड्यूस कराया जाए। आपको कैसा रहा ये तजुर्बा? बहुत अच्छा लगा, मगर हम लोग अपने 4-5 साल की उम्र से QTV आ रहे हैं, और हम भी, बड़े भाई मुस्तफ़ा भाई भी अपने वालिद साहब के साथ आते हैं। QTV ने पैगाम को बहुत प्रमोट किया है शुरू से लेकर अब तक, कि वो कव्वाली का पैगाम हो, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो नात खानी के हवाले से हो। एक ही नाम था शुरू से लेकर अब तक, माशाल्लाह, अल्लाह उसको सलामत रखे, कि QTV। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवालों के लिए भी, कवाली के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और इसके लिए हम उन कलामों के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि जो कलाम खुद होते यार, वो कलाम जो नापैद थे, मतलब लोगों तक पहुंचे भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे उनको पहुंचाया। सही। इसमें हाजी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जब ARY QTV में नहीं आया था ना, जब मैं छोटा था, तो सहरी के वक्त मैंने एक दफ़ा नशरियात लगाई, गालिबन 2004-5 की बात है। तो एक कवाली चल रही थी फरीद अयाज और अबू मोहम्मद साहब की, उस कवाली का आज तक मुझे याद है, जबकि मैंने तब एक ही बार सुनी है। मुझे एक कता, उन्होंने गिराबंदी के बड़े बेताज बादशाह हैं फरीद भाई, तो उन्होंने एक गिरा लगाई थी, कलाम वो था, ज़ेर अहमद कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल। और मुझे गिरा सुने, अल्लाह फरमाते हैं, बहरे गमे सियाह है और दूर कनारा है, मैं गौता जनी में हूँ, तिनके का ना यारा है, दम टूट पड़ा मेरा, कोई ना सहारा है, अब लब पे फकत बाकी बस एक नाम तुम्हारा है, रहमत कुन नज़र, वही नाम है। हाय हाय हाय, वही एक नाम। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ईद में ऐसा ही होता है हजरत, आप ईद में पहली बार ज्वाइन किया, ऐसा ही कुछ होता है। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। जी, चेहरों पे है नूरी उजाला, दिन आया है रहमतों वाला, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है, उजरत लेने का दिन अल्लाह की बारगाह में। 30 दिन अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहें, अशरा रहमत, फिर मग़फ़िरत, फिर जहन्नम से आज़ादी, और उसके बाद अल्लाह में ईद अता फरमाता है। और ईद पर खुशियों का तबादला होता है। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मोहतरम स्कॉलर और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ARY QTV के प्लेटफॉर्म से अरसा दराज से माशाल्लाह
آپ ان سے مسائل بھی پوچھتے ہیں, ہم ان سے سوال بھی پوچھتے ہیں, اور ہمارا ماشاءاللہ ایک بے تکلف سا رشتہ ہے, لیکن اس میں لحاظ الحمدللہ پورا ہے کیونکہ وہ عالم دین ہے, استاد ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. حضرت عید مبارک. خیر مبارک. عید کا رنگ پہنا ہوا ہے آپ نے, یقین مانیے. ماشاء اللہ آپ کا رنگ بھی ماشاء اللہ جو ہم نے تو گہرا پہنا ہوا ہے, عید کا نہیں ہے, آپ کا عید کا ہے. بہت گہرا ہے. ہاں گہرا, دیکھیں نا بندہ بھی تو کتنا گہرا ہے آپ, ٹھیک ہے نا. ابھی بہت دور. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ماشاءاللہ ساتھ دنیا قوالی کے بہت ہی معروف نام ہے, بہت ہی خوبصورت آواز ہے, بہت زندہ دلی سے ماشاءاللہ جان سے پڑھنے والے ایک خانوادہ ہے جناب, ایک روایت ہے, ایک تہذیب ہے, زندہ ان کی شکل میں نسل در نسل ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور ایسا نام ہے کہ الحمدللہ تعارف کے محتاج نہیں ہے, سب کو معلوم ہے. طاہر علی ماہر علی کی ایک جوڑی ماشاءاللہ, طاہر بھائی اب چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ہمارے عید پہ ان کو یاد کریں. اور ماہر بھائی سے میرا ایک پیار, ایک بے تکلف رشتہ, دوستی بھی ہے, اور کئی سٹیجز ہم نے ساتھ میں شیئر بھی کیے ہیں. تو ماہر علی اور شامیر علی اب ماشاءاللہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور عید پر تشریف لاتے ہیں. میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت بہت عید مبارک آپ لوگ سبوں کو, ناظرین کو بھی, سامعین کو بھی. آپ کو بھی عید مبارک, آپ کے چاہنے والوں کو بھی مبارک. ایک بہت بڑا وہ کراؤڈ جو جب آپ پڑھتے ہیں اور وہ جنبش لب نہیں جنبش بدن ہوتی ہے, ان سب کو بھی عید مبارک آپ کی طرف. خیر مبارک. بہت اچھا, بہت زندہ دلی سے پڑھنے والے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ. یہ تشریف فرمائیں ایک ثنا خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ان کی شخصیت پہ بھی بہت سارے کمالات ہیں. صرف ثنا خانی کا تو اللہ نے ان کو ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے, اس کے علاوہ بھی یہ بہت ماشاءاللہ ہنستے ہنساتے رہتے ہیں اور کھلاتے رہتے ہیں. بہت پیارے ہمارے ساتھی ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح. آپ نے ایئر وے QT پہ 30 دن ان کو حمد و مناجات اور دیگر نعت کے سیشنز میں دیکھا. علی حیدر چوہان فرام حیدرآباد, کیسے ہیں علی حیدر؟ الحمدللہ. عید مبارک. خیر مبارک آپ سب. پہلی بار آپ کو بغیر ٹوپی کے دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیے یہ زمانی نہیں ہے, اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ جو آپ سر پہ اڑتے ہیں کیپ, اس کے بغیر پہلی بار. آج تو ہیرو بنے ہوئے, اچھے خاصے بال ہیں مفتی صاحب. اچھا میں تو سمجھا کیپ بھی کی بھائی ماشاءاللہ. اچھے خاصے بال ہیں, میں تو سمجھا تھا کہ وہ کیپ لوگ لگاتے ہیں نا, ہمارے محمود اشرفی صاحب لگاتے ہیں نا کیپ, تو وہ جب اتارتے ہیں تو وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیوں انہوں نے جو لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ, مطلب اگر نہ بھی لگائیں تو ماشاءاللہ اس کی وجہ عید کا دن, عید کا دن ہے. سلمان بھائی یار میرے دوست کے بارے میں ایسی بات نہ کریں, اللہ پاک میرا بھی دوست ہے وہ, اللہ پاک نے بہت سعادت دی, بار بار وہ عمرے پہ جاتے ہیں, اس لیے ان کے بال نہیں ہیں. ویسے جب بال بڑھ جاتے ہیں تو پورے بال ہیں. انہوں نے اچھا بار بار عمرے پہ جانے سے بال اور گھنے ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں, بات کو کوئی اگر آپ کی بات کو غلطی نہیں, دوبارہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں, کنفرم کر دیا کہ واقعی ایسا بار بار گنجا ہونے سے بال فرق پڑ جاتا ہے. میں بہت چکا ہوں. اچھا چلے, اب تو شکر ہے خدا کا, اللہ کا شکر ہے. مولانا عمران بشیر صاحب بہت امپورٹنٹ میسج کر رہے ہیں کسی کو. مولانا عمران بشیر کافی دیر سے اوپر دیکھ کر رہے ہیں, تو یقین کریں اس قدر نہ ہر بات یاروں سے پوچھو, جو راز ہے وہ اشاروں سے پوچھو. مطلب کیا چل رہا ہے آپ کے من میں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. فرمائیے, ارشاد فرمائیے. کچھ اگر اس کا نہیں بنتا اپنا تو بنا. نہیں, اس کے بھی بنے ہوئے, اپنے بھی بنے ہوئے ماشاءاللہ. کچھ عید, کچھ لطاف, کچھ لطائف کچھ آپ کی طرف سے. آپ کو دیکھ کے عید ہو رہی ہے ہماری ماشاءاللہ, آپ کو دیکھ کے دل خوش. اللہ اکبر. ہم ہی اتار دیا ایک جملہ. اب بات حضرت, کچھ کوئی لڑکپن, کوئی طالب علمی کا دور, کوئی شرارت یاد ہو, کوئی ایسی واقعہ, کوئی ایسا تبسم آ جائے چہروں پہ, یا کسی اور کا واقعہ. چلیں کوئی نہیں, کسی اور کی طرف رجوع کریں, مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کر کے پھر آپ یاد کر کے مجھے سنائیں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ عید, پھر حضرت کی طرف بھی ابھی تک نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, واقعے سے یاد آ گئے, میں کسی اور کا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں. ادب کی بات کر رہے تھے, مستنصر حسین تارڑ صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک بڑا نام ہے, اور بہت سے انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے تھے. تو انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا, جو وہ عمرے پہ گئے تھے, تو اس کا انہوں نے سفر نامہ لکھا منہ ول کعبہ شریف. اس میں انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ چشم دید واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں وہاں موجود تھا, تو پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک جو ہے وہ زائر تھے, تو وہ کعبہ مشرفہ سے لپٹے ہوئے اور وہاں لپٹ کے اونچی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ مینوں اپنے کول رکھ لے, میں نہیں جانا, مینوں اپنے کول رکھ لے, نہیں اللہ میں نے نہیں جانا, مجھے اپنے پاس رکھ لے. سمجھ آ رہی ہے. اب وہ ہوا یہ کہ جب واپس ہوٹل گئے, کہنے لگے وہ بخار ہو گیا ان کو. اب
बुखार हो गया तो अब वो 3 दिन ऐसी कैफियत रही कि उनकी हाजिरी नहीं हो सकी। अब उन्होंने साथ वालों से कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरह वहाँ लेके जाओ। लेकर दोबारा उठ के वो जो है लिपट के घर कह रहे हैं या अल्लाह, अगर मैंने जोश में आके मांग ही लिया था तो ये क्या ज़रूरी है कि मेरी हर दुआ कबूल की जाए। क्या बात है अल्लाह रहम फरमा। भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत वो अच्छे। इस पे उन्होंने जिक्र किया कि देखें इंसान जो है वो जज्बात में आके बातें तो करता है जान देने की, पैशनेट हो जाता लेकिन जब जो है मौका जान देने की पड़ता बारी है, होती है तो पीछे जान आ देने की बारी आए या मौत आंखों के सामने नजर आए तो अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो जाता है। सही बात है। जोश अपनी जगह। आपको इससे मुझे एक वाकया याद आया। एक बुजुर्ग से बड़ी अकीदत रखने वाले साहब थे, जेब में प्राइस बॉन्ड रख के मज़ार पहुंच गए। उन्होंने कहा बाबा जी आज मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाए, अल्लाह से सिफारिश कर दे। आप अल्लाह के नेक बंदे बरगज़ीदा, आज मेरा प्राइस बॉन्ड, आज तारीख है, आज अभी निकलना चाहिए प्राइस बॉन्ड। वो वहाँ से बाहर निकले, किसी ने जेब काट ली, प्राइस बॉन्ड निकल गया। तो वो वापस आए मज़ार के अंदर। उन्होंने कहा बाबा जी किसी की गलती पूरी समझ लिया करो। मैंने कहा था इनाम निकले तो सब मेरी जेब ही काट दी। मदीना शरीफ, वाह वाह सुल्तान। मदीना शरीफ में एक साहिब थे नाथ ख्वां, तो वो जब कलाम पढ़ते थे मौला यही मौत देते हैं, वापस ना जाऊँ, आऊँ तो वापस ना जाऊँ। बिल्कुल सही। तो फिर किसी दूसरे ने शरारत की, ठीक है। तो ऐसे ही हम खाना खा रहे तो बार बार अल्लाह ताला तुझे यही मौत दे दे, तू यही मर जाए। तो वो 2-3 मिनट तो सब्र किया उससे ना, उसके बाद यार तुम मुझे ही मौत की दुआ दे रहा है। हाँ तो आपने मांगी थी, नहीं बच्चे हैं मेरे भाई, अल्लाह आता जाता रहूँ मैं, ये दुआ ये क्या बात, गर्म जोशी। हमारा एक कज़न, उसके पास एक मौलाना साहब आए, उसको कहा कि अल्लाह की राह में निकलो, कोई वक़्त निकालो, कोई उम्रे पे कोई अल्लाह की राह में कोई सफ़र करो। कहने का दुआ करें, काम का आजकल बहुत ज़ोर है, काम कुछ कम हो जाए तो फिर निकलूँगा। उसके बाद काम उसका ऐसा बैठा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही फारुग हो गया। फिर वो न घर के रहे न घात के, क्या बात है। एक दोस्त हमारा गया उधर, अपने बच्चे को रोज़ाना ना सही रात को सुलाने से पहले कहता है, ताहा नाम था उस बच्चे का, सही। वो रोज़ाना रात को कहता है कि ताहा जंगल में गया और फलां जानवर मिला, फलां फलां फलां, सबको इसने वो कर दिया, और शेर पे ताहा बैठा तो शेर फिस गया। उसके बाद ताहा साहब जनाब पूरे जवान होकर रात को सोते थे कि मैं शेर को भी ना वो शिकस्त दे के सो रहा हूँ। एक दिन सचमुच में चिड़ियाघर में लेके चले गए। अब शेर साहब जब सामने से है ना तो कहता है ताहा शेर पे बैठना है, तो अब ताहा साहब की ये कैफियत, बिल्कुल जाहिर है। अब ये नहीं आगे सुने जो असल बात है, ये कैफियत अब्बा जी ने कहा ताहा बेटा शेर पे बैठा, कहता नहीं शेर फिस जाएगा। फिर मैं उस पर रहम कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अरे मोहसिन साहब जी, ईद उल फितर की कुछ खुशियाँ, अब तो ईद ही देने के दिन है। ईद के दिन तो कम से कम ऐसा मौका आता होगा जब आपके देने की बारी कभी तो आप ऐसा कहा करें कि मेरी तरफ से आप लें, हमेशा आप लेने वाले बने रहते हैं। आप लोगों पर पता है मुझे कई बार घर वालों ने टोका, बोले हमने वीडियो में देखा आप अपने दोस्तों पे इतने पैसे फेंक देते हैं, आप हमें तो नहीं देते इतने पैसे। यकीन करें, अच्छा आप ले नहीं थके, मैं दे थक गया। अंदाजा लगा इतने नजराने। अल्लाह माफ। यार माहिर भाई आप बताओ, मैं तो उधार वाले पैसे होते हैं। नहीं भाई कैसे डालता है? वो तो उधार वाले पैसे होते हैं, जान में उतारने होते हैं। अच्छा एक दफा ना इन पे मैंने डाल दिए जनाब, सुने, इन पे मैंने डाल दिए 25,000 रुपए। वो मैं 5-5 हज़ार के नोट डाले जा रहा हूँ। अब वो ये जो है ना, ये भी हैरान कि यार आज दरियाए सखावत जोश मार रहा है, तो 2-5 हज़ार तो सलमान डाल देता है, मतलब बेतकल्लुफ़ी है, हमारी दोस्त है, तो कहा 2-5 हज़ार तो सलमान डाल सकता है, ये 25-30 हज़ार रुपये की कहानी। आखिरी नोट देते हुए मैंने कान में कहा ये आपका बैलेंस क्लियर हो गया। सखावत भी हो गई बरमला। समझ तो गए होंगे। एक जगह ये मुझे नजराना दे रहे हैं, मुझे दिखा के कि ये वो पैसे थे उधार लिए थे, वो वाले 3 शायद 10 पूरे हो गए। इस तरह मैंने खावर पे एक मरतबा खावर पे 36,000 देना था खावर का, तो मैंने उन पे जो है पूरे 50,000 रुपये डाल दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन किया, भाई वो आपके 36,000 टिकट वाले क्लियर हो गए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कह रही ये कोई बात मैं तस्लीम नहीं करूँगा, मेरा कर्जा बाकी है, वाजिबुल अदा है। मैंने कहा नहीं एक्स्ट्रा दिए मैंने, उसमें एक्स्ट्रा वाले अलग। ये तो वही वाला साहब हो गया, डाकू पड़ गए ना, 2 दोस्त जा रहे थे, तो उसने एक ने कर्जा देना था दूसरे का। सही। तो उसके पास कुदरती पेमेंट थी जो उसने कहीं और अदा करी। ये लो भाई मैंने आपका कर्जा, कहते मैं नहीं वसूल करता। अल्लाह, ऐसे मौके पे दो कि अपने ऊपर ही खर्च हो जाए, क्या बात है। तो कर्ज ही क्या जो अदा जी। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद माहिर भाई और शामिर भाई से कोई और अली हैदर चौहान से कोई वाकया। माहिर भाई के पास तो बहुत सारे वाकयात होंगे, कोई कव्वाली की दुनिया का ऐसे वाकये जो सुना नहीं सकता। नहीं, कोई ऐसा सुना दे, कोई ऐसे पीर साहब याद दिला दे, कोई यादें ताज़ा कर दे। ब्रेक के बाद होती है बोला।